Okay, then schönen guten Abend. Assalamu alaikum alle zusammen. Hören Sie mich? Am I audible? Können Sie Yeah, mich sir. hören? Umer, Very good. Farhan, Yeah, Meherin, sir. Saida, We Fatma. sure do. Yeah. Umer, कैसे हैं आप सभी की टेस्ट नाले alles gut? All is good, sir. Sehr gut, ich hoffe, ihr geht Ihnen alle gut. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Mir geht es auch gut, Alhamdulillah. Okay, so was haben wir in unserer letzten Vorlesung gelernt? What we have learned in our previous lesson. Was haben wir gelernt? Wer kann mir sagen? कौन बताएगा? Was haben wir gelernt? Wir haben konjunktionale Adverbien or connecting adverbs. Wir have learned connecting adverbs. Wir haben konjunktionale Adverbien gesehen. Wir haben trotzdem gesehen. Was ist trotzdem? Trotzdem क्या होता है? Gib mir ein Beispielsatz mit trotzdem. उससे कोई example sentence बताएं मुझे. सबसे पहले zuerst sag mir, सबसे पहले मुझे बताएं कि was ist trotzdem? ये होता क्या है? सर इसका मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद और Sehr gut, Humer. Was zeigt trotzdem? Was zeigt trotzdem? ये क्या शो करता है? सर because them shows the contrast the contrasting Kontrast को शो करता है. Sehr gut. Okay. Dann gib mir ein Beispielsatz mit trotzdem. Trotzdem से कोई example sentence मुझे बताएं. हाँ, uh, sir ich bin müde sehr gut. trotzdem arbeite ich Sehr gut. Du bist müde. आप थके हुए हो. Trotzdem arbeitest du. उसके बावजूद आप काम कर रहे हो. वो काम जो नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद होता है. Benutzen wir immer trotzdem. और याद रखिएगा कि trotzdem ist ein konjunktionale Adverb. ये एक connecting या conjunctive adverb होता है. ओके, तो इसको सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे एक नया सेंटेंस भी शुरू किया जा सकता है. आई होप कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स में आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा. Heute Lektion 7 in Lesson 7 lernen wir lassen. Lassen ist ganz einfaches Thema. बहुत easy Topic है und der Satzbau ist genauso wie die Modalverben और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मॉडल वर्ब्स की तरह है. Wenn Sie Modalverben Satzbau kennen, अगर आप लोग मॉडल वर्ब के सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानते हैं, then is das ganz easy. तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है ये टॉपिक. Okay, heute lernen wir lassen. Was ist lassen? Schauen wir auch, हम ये भी देखेंगे कि wie man ein Satz mit lassen bildet. कैसे कोई भी सेंटेंस lassen की मदद से फॉर्मुलेट किया जाता है. Was bedeutet lassen? Lassen का क्या मतलब है? Lassen bedeutet to get something done by someone else. कोई काम खुद नहीं करना बल्कि किसी से करवाना. Zum Beispiel, du hast ein Auto. आपके पास एक गाड़ी है. Und sagst du और आप कहो कि ich wasche mein Auto. मैं अपनी गाड़ी को धो रहा हूँ. Ganz einfach. Ich wasche mein Auto. मैं अपनी गाड़ी को धो रहा हूँ. Dieser Satz hat drei Elemente. इस सेंटेंस में सिर्फ तीन एलिमेंट्स है. Ich यानी मैं, wasche मतलब धोना यानी verb und mein Auto. Und mein Auto ist ein Objekt. मेरी गाड़ी क्या है इस सेंटेंस में? एक ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज ganz einfaches Satzbau. ये बहुत एक सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि ich wasche mein Auto. मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ. Aber in dieser Situation, इस सिचुएशन में machst du nichts. आप कुछ भी नहीं करते हो. Sondern बल्कि jemand macht das für dich. कोई दूसरा आपके लिए उस काम को करता है. Und in diesem Situationen benutzt man immer lassen. उन situations में हमेशा lassen का वर्ब यूज किया जाता है. याद रखिएगा. किन सिचुएशंस में लसन का इस्तेमाल किया जाता है? वी यूज लसन व्हेन यू लेट समवन एल्स टू डू समथिंग फॉर यू. जब आप किसी को किसी से कोई काम लेते हो या अपने लिए कुछ करवाते हो. machst du diese Aufgabe nicht. आप उस काम को नहीं करते हो. sondern बल्कि jemand macht das für dich. कोई दूसरा आपके लिए उस काम को
करता है। यू आर नॉट डूइंग द एक्शन योर सेल्फ बट, लेकिन समवन एल्स इज डूइंग इट फॉर यू, कोई दूसरा आपके लिए उस काम को करता है। एंड इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम एज मोडाल वर्ब। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल मॉडल वर्ब की तरह होता है, habe ich schon gesagt. Wenn Sie Modal Verbs kennen, अगर आपको मॉडल वर्ब्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, सो इस das ganz easy für Sie, आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। फर्स्टीन जी, यहाँ तक समझ आया सबके? फरहान, महरीन, सईदा फातिमा, सैयद उमैर, जियाद, काशान, मोहम्मद हुमैर अली। हजरत जी कोई सर। क्वेश्चन? सर इसका मतलब यही है ना, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गेटिंग माय वर्क डन। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल ऐसा सिर्फ ही। ये लास्ट से मतलब ये लास्ट सन आ जाएगा, इसमें कोई मतलब कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, मतलब कुछ जैसे चेंज नहीं वर्क होगा। डन या कुछ भी नहीं होगा उसमें। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ओने प्रीपोजिशन, विदाउट प्रीपोजिशन, सब कुछ वैसे ही रहेगा। कान सी जी, तो बहुत यानी आसान है। जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी काम करवा रहा है या फिर कोई भी काम किसी मतलब जैसे हम कुछ बोलते हैं कि मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना आई एम गेटिंग माय कार वॉश्ड। बिल्कुल, आई तो गेट माई उसमें कार, बहुत बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर यूज होती है, मतलब जर्मन में ऐसा नहीं है, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल हूँ मैं। जर्मन तो इतनी आसान है, मैं तो सबको ये बोलता हूँ यार, तुम लोग बिला वजह मुश्किल बना देते हो जर्मन को। जर्मन इज गान सीधी यार, बहुत आसान है। काइन प्रीपोजिशन, कोई preposition नहीं है, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, गान सीधी बहुत सिंपल है। zum Beispiel, du hast ein Auto, तुम्हारे पास एक गाड़ी है। und du reparierst dein Auto, तुम जो है वो अपनी गाड़ी को रिपेयर कर रहे हो। wie sagst du, आप कैसे कहोगे कि आई एम रिपेयरिंग माई कार, मैं अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा हूँ। दस इज डाइन ऑटो, ये आपकी गाड़ी है। माइन ऑटो, ओके, ये मेरी गाड़ी है। और इन diesem बिल्ड, इस पिक्चर में, reparierst du dein Auto, आप अपनी गाड़ी को खुद रिपेयर कर रहे हो। reparierst du dein Auto selbst, आप अपनी गाड़ी को खुद रिपेयर कर रहे हो। then wie sagst du, आप कैसे कहोगे कि आई एम रिपेयरिंग माई कार? ich repariere mein Auto. Ganz einfach. Dieser Satz hat drei Elementen. This sentence has only three elements. Zuerst, सबसे पहले क्या है? Ich. Ich means मैं, ich ein Subjekt. Und dann reparieren. Reparieren ist ein Verb. Means to repair something. किसी चीज की मरम्मत करना. Und in diesem Satz, uh, mein Auto ist ein Objekt. मेरी गाड़ी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। Aber, लेकिन, jetzt, अब, in dieser Situation, इस सिचुएशन में, repariere ich mein Auto nicht, अब मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। das ist ich, ये कौन है? ये मैं हूँ। und er ist ein Mechaniker, ये क्या है? ये Mechaniker है। so der Mechaniker। jetzt, अब, in dieser Situation, इस सिचुएशन में, repariere ich mein Auto nicht, मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, sondern बल्कि der Mechaniker repariert mein Auto, जो मैकेनिक है वो मेरी गाड़ी को रिपेयर कर रहा है। उन sage ich, मैं कह रहा हूँ कि ich lasse mein Auto reparieren। ich lasse mein Auto reparieren का मतलब है कि I get my car repaired, मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूँ। वन benutzt man lassen ich wiederhole, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि benutzen wir lassen, हम lassen का इस्तेमाल करते हैं when wir nichts machen, जब हम कुछ नहीं करते हैं, sondern बल्कि jemand macht das für uns, कोई दूसरा हमारे लिए उस काम को करता है। in diesem Situation, इस सिचुएशन में, benutzen wir immer lassen, हमेशा lassen का इस्तेमाल किया जाता है। zum Beispiel, du hast ein Auto, आपके पास एक गाड़ी है। und du wäschst dein Auto, आप अपनी गाड़ी को धो रहे हो। wie sagst du, कैसे कहोगे आप कि मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ? ganz einfach, simple, ohne lassen, without lassen, कैसे ich कहोगे? ich wasche mein Auto। Ich wasche mein Auto, ganz easy। Jetzt, अब, du wäschst dein Auto nicht, अब आप अपनी गाड़ी को नहीं धो रहे हो, sondern बल्कि die andere Person wäscht das für dich, अब कोई दूसरा बंदा या दूसरा इंसान आपकी गाड़ी को धो रहा है। then wie sagst du, आप कैसे कहोगे कि मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा हूँ? Ich lasse mein Auto Ich waschen। lasse mein Auto waschen। ganz einfach, कितना आसान है। kein Präposition, कोई preposition नहीं है। kein Partizip zwei, कोई past participle नहीं है। सिंपल,
Der Satzbau ist genauso wie die Modalverben. सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मॉडल वर्ब्स का होता है. इन्फिनिटिव वर्ब स्टेट इम्मा am Ende. जो मेन वर्ब है या इन्फिनिटिव वर्ब वो कहाँ आएगा? हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा. Und auf Position 2 सेकंड पोजीशन पर स्टेट इम्मा ein lassen. हमेशा क्या होगा? एक lassen होगा. Verstehen Sie? alles klar, यहाँ तक क्लियर है सबको? और सर अगर ऐसे बोलें कि आई गेट माई कार रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक, तो फिर कौन सी पोजीशन यूज करेंगे बाय हम? मैकेनिक, बाय बाय मैकेनिक जी। के लिए आप फिर फोन का यूज करोगे. ओके, फोन, फोन ओके का सर। वर्ड यूज किया जाएगा. लेकिन इसको पैसिव में जाके कवर करेंगे हुमैर. ओके, कि फोन क्या होता है. ओके, schauen wir ein paar Beispiele, जैसे कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस को देखते हैं. इन diesem Bild, इस पिक्चर में, आ, ich schneide mir die Haare. schneide mir die Haare का मतलब है कि आई एम कटिंग माई हेयर्स, मैं अपने बाल काट रहा हूँ. अब ich mache das selbst, मैं ये काम खुद कर रहा हूँ. niemand macht das für mich, ये काम मेरे लिए कोई नहीं कर रहा. sondern बल्कि ich schneide mir die Haare selbst, मैं खुद अपने बालों को काट रहा हूँ. dann wie sage ich, मैं कैसे कहूँगा कि मैं अपने बालों को काट रहा हूँ? ich schneide, ich schneide mir die Haare. schneide mir die Haare. Was bedeutet schneiden? schneide कहाँ से आया? schneide kommt aus Schneiden, schneiden. schneiden means to cut. to cut. verstehen Sie? okay, jetzt, अब Ich schneide mir die Haare nicht. अब मैं अपने बालों को नहीं काट रहा हूँ. sondern बल्कि der Friseur, Friseur कहा जाता है बार्बर को या Nails. नाई को. aber jetzt, लेकिन अब die andere Person schneidet mir die Haare. अब कोई दूसरा मेरे बालों को काट रहा है, बल्कि मैं इस काम को, या मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ. so wenn du das nicht machst, अगर आप किसी काम को नहीं करो, sondern बल्कि die andere Person macht das für sie, बल्कि कोई दूसरा इंसान उस काम को आपके लिए करे. so benutzt du immer lassen, आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हो? lassen का. und das Hauptverb geht immer am Ende, और जो मेन वर्ब होता है उस सेंटेंस का, यानी काटना, बाल काटना, वो कहाँ चला जाएगा? एंड में चला जाएगा. dann sagst du, आप कहोगे कि ich lasse mir die Haare schneiden. Ich lasse mir die Haare schneiden का मतलब है I get my hair cut, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ या कटवा रही हूँ. Verstehen Sie? Alles klar? और सर अगर हम पास में बोले मैं अपने बाल कटवा रहा था, तो फिर लासे का वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसको देखेंगे हम, उसको आगे चल कर देखेंगे. जैसे schauen wir später. ओके, सर ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मॉडल वर्ब जैसा ही है, मतलब जैसे बिल्कुल मॉडल वर्ब्स में भी पास्ट में चेंज हो जाता है ना? बिल्कुल. der Satzbau ist genauso wie die Modalverben. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मॉडल वर्ब का होता है. ओके, ओके सर। sehr gut. Dann gehen wir weiter. Schauen wir andere Beispiele. एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं. Was bedeutet streichen? Streichen means, pronounce with me, पेंट। streichen. Streichen means to Streichen। paint, paint करना. अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे यार मालन का मालन नहीं, मतलब भी तो पेंट करना होता है. लेकिन मालन का मतलब पेंटिंग. पेंटिंग होता पेंटिंग है होता सर। है. जो आप पेंटिंग करते हो, कोई पिक्चर बनाते हो या कोई भी घर में पेंटिंग करते हो, या हाँ लाइक क्रिएटिव पेंटिंग जिसे कहा जाता है, जिसमें स्केच बनाए जाते हैं, पेंटिंग की जाती है पिक्चर्स, उसको मालन कहा जाता है. जबकि प्रोफेशनली किसी भी चीज़ को, घर को पेंट करने के लिए, बिल्डिंग्स पे पेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक वर्ब. वो क्या होता है? streichen. pronounce with me, streichen. Streichen। sehr gut, Streichen. sehr gut. okay, dann jetzt, अभी. Ich streiche mein Haus. I am painting my house. मैं अपने घर को पेंट कर रहा हूँ. Ich streiche mein Haus. Und in diesem Bild, इस पिक्चर में, streiche ich mein Haus nicht. अब मैं अपने घर को पेंट नहीं कर रहा हूँ. sondern बल्कि die andere Person macht das für mich. कोई दूसरा इंसान मेरे लिए इस काम को कर रहा है. dann wie sage ich, मैं कैसे कहूँगा कि I get my house painted, मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ. Ich lasse mein Haus streichen. Ich lasse
mein Haus streichen. Alles klar? Verstehen Sie? Clear है सबको? Okay, Yes, sir. done. Schauen wir Satzbau. Sentence Structure को देखते हैं. Und der Satzbau ist genauso wie die Modalverb. इसका Sentence Structure बिल्कुल वैसा ही है जैसा Modal Verbs का. Zuerst, am Anfang kommt immer ein Subjekt auf Position 1. First Position पर हमेशा Subject आता है. Dann kommt lassen immer auf Position 2. हमेशा Second Position पर lassen आएगा. और याद रखिएगा कि हर वो चीज़ जो सेकंड पोजीशन पर मौजूद है, चाहे वो जाइन हो या हाबन हो या कोई भी वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, वेर्डन हो फ्यूचर का, कोई भी चीज़ हो जो सेकंड पोजीशन पर मौजूद होती है, दस वियर्ड इमा कॉन्जुगेट, वो हमेशा क्या होती है? कॉन्जुगेट होती है. सो लासन वियर्ड auch कॉन्जुगेट, लासन भी कॉन्जुगेट किया जाएगा. Alles klar? Dann auf Position 3, Third Position पर kommt immer ein Objekt und am Ende, at the end, steht ein Hauptverb im Infinitiv. Main Verb रहेगा end में और हमेशा अपनी infinitive form में रहेगा. The person doing the job, वो इंसान जो काम को कर रहा है, is usually not mentioned. उस इंसान को mention नहीं किया जाता. ओके, कि आप काम करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो, यूजुअली उस इंसान को मेंशन नहीं किया जाता. Ich wasche mein Auto, मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ. Ich lasse mein Auto waschen, मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा हूँ. Ich repariere mein Auto, I'm repairing my car. Ich lasse mein Auto reparieren. Verstehen Sie? Alles klar? Ich schreibe eine E-Mail. मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ. Jetzt schreibe nicht, अब मैं लिख नहीं रहा, sondern बल्कि du schreibst ein E-Mail. अब आप एक ईमेल लिख रहे हो für mich, मेरे लिए. Wie sagst du, आप कैसे कहोगे? Ich, Ich lasse meine E-Mail ich schreiben. lasse meine E-Mail oder ich lasse eine E-Mail schreiben. मैं ईमेल लिखवा रहा हूँ. Verstehen Sie? Alles klar? ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबके कि वन मिनट्स मान lassen, lassen का इस्तेमाल कब किया जाएगा? Wenn du nichts machst, जब आप कुछ नहीं करोगे, sondern बल्कि jemand oder die andere Person macht es für dich. कोई दूसरा आपके लिए उस काम को करेगा. शफीक, हाजुर नफागे कोई क्वेश्चन? Yes, sir. सर इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा माइन होगा, लाइक मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा हूँ या नहीं, जरूरी वायर नहीं है. कटा रहा हूँ. मैं तुम्हारी गाड़ी धुलवा रहा हूँ शफीक. इश ला से डाइन आउट वाशन, मैं तुम्हारी गाड़ी धुलवा रहा हूँ. अच्छा, वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल आपके चेंज हो लिए ही सकता है. तुम मेरी आपके गाड़ी लिए धुलवा रहे हो शफीक. Du lässt mein Auto waschen. ओके. सो ठीक वी है. वी कॉन्जुगेट मान लासन. लासन को कैसे कॉन्जुगेट करेंगे? इश के साथ, डू के साथ. द शान वी गार्ड, इसको भी देखते हैं. ओके. ठीक है. ओके. जय गुड. यहाँ तक क्लियर है सबको? फरहान, शफीक, हुमैर, मेरीन, यस. हुसैन, आरिस क्लास, ईदा, फातिमा, हाँ सर, यस. हाँ. हुमैर अली. यस सर. ओके. डन गेहन विया वाइडा. शावन विया. अब हम देखते हैं कि वी मान लासन कॉन्जुगेट, कैसे लासन को कॉन्जुगेट किया जाता है mit verschiedenen Subjekten, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ. zum Beispiel mit ich के साथ क्या कहा जाएगा? Ich lasse, लास्ट है. ich lasse mein Auto reparieren. I get my car repaired. मैं अपनी गाड़ी सही करवा रहा हूँ. मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा हूँ. Ich lasse mein Auto माइन ऑटो waschen. वाशन. Sehr gut. मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ. Ich lasse, क्लास से मिया ich lasse mir die Haare दी हारे schneiden. schneiden. Sehr gut, sehr gut. Du, du means तुम, du lässt. Pronounce with me, du lässt. टू लेस्ट. Lässt, lässt kommt immer mit A Umlaut. A के ऊपर हमेशा एक umlaut होगा. Darum nennt man das lässt. इसीलिए इसको lässt कहा जाएगा, last नहीं कहा जाएगा. वेगन umlaut, umlaut की वजह से. ओके. तुम अपनी गाड़ी धुलवा रहे हो. Du lässt, pronounce with me, du lässt dein Auto
reparieren. Du Du lässt Ein dein Auto Auto reparieren. reparieren. Auto reparieren. अब जरूरी नहीं है कि du lässt immer dein Auto reparieren. Du kannst auch mein Auto reparieren lassen. आप मेरी गाड़ी भी धुलवा सकते हो. ओके, अब ये नहीं सोचना कि kannst कैसे आ गया इसमें. ये आगे चल कर बताता हूँ. ओके, कि wie man lassen mit Modalverb benutzt. कैसे मॉडल वर्ब्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, डन. Er sie es. Er sie es lässt. Beides in gleich. ये दोनों सेम है अगर आप देखें. So du के साथ भी lässt und mit dritte Person auch lässt. थर्ड पर्सन के साथ भी क्या है? lässt. Wie sagt man, कैसे कहा जाएगा कि उमेर अपनी गाड़ी धुलवा रहा है. उमेर अपनी गाड़ी धुलवा रहा है. उमेर Umer lässt lässt Lest sein Auto Sein sein Auto. waschen. Waschen oder reparieren. Verstehen Sie? Sehr gut. हम अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं. Wir lassen, ganz easy. Wir Wir lassen lassen unser Auto unsere waschen. Auto. Unser Auto. Auto ist Neutrum, unser okay? Auto hat kein Gender. Auto का कोई Gender नहीं होता. Unser Auto. Reparieren oder waschen. इहा तुम लोग अपनी गाड़ी धुलवा रहे हो. Du, इहा, last. ihr Pronounce with me, last. इहा last. ओने umlaut. इहा के साथ जो lassen है वो हमेशा ओने umlaut होगा. विदाउट umlaut उसको पढ़ा जाएगा last. इहा last. Pronounce with me, इहा Ihr last. last. Ihr lasst. तुम लोग तुम लोग अपनी गाड़ी धुलवा रहे हो. इहा last euer Auto waschen oder reparieren. Verstehen Sie? Dann Sie. Sie kommt immer mit Infinitiv lassen. आप अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं या वो लोग अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं. Sie lassen ihr Auto waschen oder reparieren. Verstehen Sie? Okay, ich wiederhole, मैं repeat कर देता हूँ. Ich lasse, du lässt, sie es lässt oder eine Singularname, कोई singular name भी हो सकता है. Dann wir lassen, ihr lasst, sie lassen. Alles klar, verstehen Sie? Okay, dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Und machen wir ein paar Beispielsätze, कुछ example sentences को देखते हैं. So erst, we are getting our house renovated. Renovated, dieses Verb kommt aus English. ये English से आया है. Und kennen Sie, आप जानते हैं कि ऐसे verbs जो English से आते हैं उनको क्या कहा जाता है? Internationale. Internationale Verben. Sehr gut. Pronounce with me, renovieren. 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 Renovieren means to renovate something. हम अपना घर renovate करवा रहे हैं. Wir lassen unser Haus renovieren. Okay? Jetzt, अब, wir lassen das nicht. हम ये काम करवा नहीं रहे हैं. Sondern machen wir uns selbst. अब ये काम हम खुद कर रहे हैं. Dann, wie sagen wir? हम कैसे कहेंगे कि हम अपना घर खुद renovate कर रहे हैं? Wir, Renovieren. unser Haus. Wir Ganz renovieren easy. unsere Haus. Wir Wir, renovieren unsere Haus. wir renovieren unser Haus. Ganz easy. Ohne lassen. Without lassen. Sehr gut. Dann, he gets his beard trimmed. वो अपनी दाढ़ी बनवा रहा है. Trimmen. Pronounce with me, trimmen. Trimmen means Trimmen, to to trim. trim. Okay. So, er lässt sein Seinen Bart Bart trimmen. trimmen. Verstehen Sie? Alles klar? Verstehen Sie? यहाँ तक क्लियर है Alles सबको? klar, alles Okay, sehr gut. Dann, Bart. you are getting your watch repaired. Deine Uhr ist kaputt. आपकी जो घड़ी है वो टूट गई है. Dann, in dieser Situation, du reparierst deine Uhr nicht. अब आप अपनी घड़ी को खुद रिपेयर नहीं कर रहे हो. Sondern बल्कि die andere Person macht das für dich. अब कोई दूसरा इस काम को आपके लिए कर रहा है. Then wie sagst du? आप कैसे कहोगे कि I am getting my watch repaired. मैं अपनी घड़ी सही करवा रहा हूँ. Wie sagt man? Ich lasse mein Uhr Ich reparieren. lasse meine Uhr reparieren. तुम अपनी घड़ी सही करवा रहे हो. Du Du lässt deine lässt Uhr dein, reparieren.
Sehr gut, du Nein, lässt nein. deine Uhr reparieren. शफीक अपनी घड़ी सही करवा रहा है. Shafiq lässt. शफीक Uhr ist kaputt. शफीक की जो घड़ी है वो खराब हो गई है या टूट गई Shafiq है. lässt seinen Uhr reparieren. शफीक lässt seine Uhr reparieren. शफीक अपनी घड़ी को सही करवा रहा है. अब jetzt. अब शफीक hat kein Geld. शफीक के पास पैसे नहीं है. repariert शफीक seine Uhr selbst. अब शफीक अपनी घड़ी को खुद रिपेयर कर रहा है. Wie sagt शफीक? शफीक कैसे कहेगा कि मैं अपनी घड़ी को रिपेयर कर रहा हूँ? Ich selbst खुद. lasse, ich lasse meine Uhr खुद reparieren. रिपेयर कर रहा हूँ. खुद रिपेयर कर रहा हूँ. ohne lassen. Ich repariere. Ich Ich. repariere meine Uhr. repariert. Sehr gut. Ich repariere meine Uhr. मैं अपनी घड़ी को रिपेयर कर रहा हूँ. Verstehen Sie? Alles klar? Okay, dann ein anderes Verb. एक नया verb है bugeln. Pronounce with me. Bugeln. Bugle. Pu- Bugle means to iron something. pu- इस्त्री करना. इस्त्री करने को क्या कहा जाता है? To iron something bugle. और आयरन को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? स्त्री ब्यूगलर होती है उसको क्या कहा जाता है? ब्यूगला. नहीं भाई, ऐसे नहीं, तुक्के नहीं मारो यार. डेया ब्यूगलाइजन. ओके. Bugeleisen. ब्यूगल ब्यूगलाइजन कहा जाता है आयरन को. अब दस इज खाइन वर्ब. ये कोई वर्ब नहीं है. जोंडन आइन नॉमिनी एक नाउन है जो स्त्री को कहा जाता है. ओके. आर्टिकल के साथ कभी भी वर्ब नहीं आता है. आर्टिकल कॉम्ट इमा मित आइनम नॉमिन. आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है. अब ब्यूगल इज आइन वर्ब. ये एक वर्ब है जिसका मतलब है टू आयरन, स्त्री करना. Alles klar? So, ich bügle mein Hemd. मैं अपनी शर्ट पर खुद इस्त्री कर रहा हूँ. अब jetzt, लेकिन अब habe ich keine Zeit. अब मेरे पास वक्त नहीं है. Jetzt, die andere Person macht das für mich. अब कोई दूसरा इस काम को मेरे लिए कर रहा है. Wie sage ich? मैं कैसे कहूँगा कि I get my shirt ironed. Ich Lasse meine lasse Presse. Presse mein वो यूज करेंगे Hemd प्रेस. bügeln. Bügeln. प्रेस Okay? नहीं. प्रेस. प्रेसे नहीं बोलेंगे. ब्यूगल, क्योंकि जर्मन में स्त्री को कहा जाता है ब्यूगलाइजन. ओके. और स्त्री करने को कहते हैं ब्यूगल. कोई हर्ष सिनोनिम क्ला. नहीं है इसका. इसका सिनोनियम मैंने आज तक मैं देखा वही नहीं, पूछ क्योंकि रहा हूँ. हमेशा हम भी यही इस्तेमाल करते हैं. ओके. हो सकता है ब्यूगले के अलावा भी कुछ हो, लेकिन सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूगल. ओके. इश ब्यूगले में चलो भी भाई, अक्सर हैंगर ये. को क्या बोला जाता है? हैंगर को कौन बताएगा? हैंगर को क्या बोला जाएगा? हैंगर किस में लटकाया जाता है? मैं भूल गया, मुझे आता था, भूल हैंगर गया. किस पे लटकाया जाता है? शांक। शांक में. शांक को. शांक तो सिंपल. क्लाइडम ब्यूगल। शांक तो सिंपल उसको कहा जाता है अलमारी को, लेकिन ऐसी अलमारी जिसमें खिलाइडों यानी कपड़े लटकाए जाते हैं क्लाइडर बूगल. उसको कहा जाता है खिलाइडा. ओके. खिलाइडा का मतलब होता है अलमारी जिसमें कपड़े लटकाए जाते हैं. और ब्यूगल. ब्यूगल का मतलब है खिलाइडा. ब्यूगल मीन्स हैंगर को कहा जाता है जो लटकाया जाता है. ओके. जी. और हैंगर को हैंगल भी कहते हैं. अगर आप सिंपल कहो ना तो उसको हैंगा ऐसे भी कहा जाता है. हैंगा भी कह सकते हो आप. कुछ लोग उसको आउफ हैंगा भी कहते हैं. ओके. हाउफ हैंगा भी कहा जाता है. हाउफ हैंगा. हाँ लेकिन सही है. सबसे क्लाइडन ज्यादा ये. स्टूकन भी आ रहा है गूगल में, देखा क्लाइडन स्टूकन. बिल्कुल. काफी क्लाइडर नाम है. बूगल आ रहा है. बिल्कुल. आउफ हाल्स गिराटे आ रहा है. आउफ हैंगन आ रहा है. क्लाइडन स्टूकन आ रहा है. बिल्कुल आउफ हैंगा भी कहा जा सकता है, जबकि ज्यादातर क्लाइडा ब्यूगल का ही इस्तेमाल किया जाता है. ओके. वेरी गुड. alles klar. उमैर, जियाद, शफीक, सईदा फातिमा, मेरीन, हुसैन, सर ये सिर्फ आयशा. क्लाइटूम का क्या मतलब था? क्लाइडों का मतलब तो क्लॉथ्स होते हैं ना, कपड़े. क्लाइटूम, ओके. ओके. वेरी गुड. डन. पर वो ब्यूगल. आइजन भी आ रहा है बूगलिंग का. आइजन ब्यूगल. आयरन का. आइजन आयरन. भी है. ठीक है, आइजन. आइजन. ठीक है, ठीक. आइजन. आइजन भी ठीक है. लेकिन आइजन कौन से आयरन को कहा जाता है? आइजन ये वाली स्त्री को नहीं कहा जाता. ये नहीं पता सर. लिखा हुआ था, मैंने चेक किया. ज्यादा आयरन जो लोहा होता है उसको आइजन कहा जाता है. ओके. ओके. जो लोहा वाला आयरन है उसको आइजन कहा जाता है, जबकि स्त्री जो अक्सो. आयरन है उसको ब्यूगल आइजन कहा जाता है. ओके. वेरी गुड. यहाँ तक क्लियर है सबको? ब्यूगल
यस एक सर। वर्ब है इश ब्यूगले, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इश ब्यूगले माइन हेम्ड, मैं अपनी शर्ट को इस्त्री कर रहा हूँ। Und jetzt habe ich keine Zeit, अब मेरे पास वक्त नहीं है। Ich lasse mein Hemd bügeln. I get my shirt iron. Okay, schauen wir ein paar Sätze. They get their windows cleaned. वो अपनी खिड़कियों को साफ करवा रहे हैं। Clean, to clean something. कुछ Putzen. Putzen Reinigen, ganz easy. putzen, ganz easy. Putzen. गाइनिगन तो सर्फ वगैरह डाल के जो धोया जाता है उसको गाइनिगन कहते हैं। सो Okay, खिड़कियों के लिए ज्यादातर खिड़की के लिए पुट्सन का इस्तेमाल किया जाता है। putzen, ओके, putzen. पुट्सन मीन्स इन जनरल टू क्लीन समथिंग। सो आई आई एम क्लीनिंग माई विंडो, मैं अपनी विंडोज को या अपनी खिड़कियों को साफ कर रहा हूँ। Ich putze विजागेश mein Fenster. Ich इश putze फुट से मायने फेंस्टा, Fenster. मैं अपनी खिड़कियों को साफ कर रहा हूँ। एक खिड़की होगी सो एक खिड़की होगी तो 10 फेंस्टा, एक Das से ज्यादा Fenster. होंगी तो दी फेंस्टा। Die Fenster. ओके, सो इश फुट से मायने Meine फेंस्टा, मैं अपनी Fenster. खिड़कियों को साफ कर रहा हूँ। aber jetzt habe ich keine Zeit, अब मेरे पास वक्त नहीं है। Die andere Person macht das für mich, कोई दूसरा इस काम को मेरे लिए कर रहा है। wie sage ich, मैं कैसे कहूंगा कि I get Ich my lasse windows cleaned। ich Ich lasse lasse meine Fenster putzen. putzen. ich lasse meine Fenster putzen। तुम Putzen. अपनी खिड़कियां साफ करवा रहे हो। Du Du Lässt lässt lässt, du dein lässt Fenster putzen. deine Fenster deine Deine Fenster Fenster, ja. putzen. putzen। Verstehen Sie? Ja. Okay, dann we get our apartment painted, हम अपने अपार्टमेंट को पेंट करवा रहे हैं। Wir lassen Unsere Wohnung unsere streichen. Wohnung streichen। Streichen. Unsere Wohnung Streichen. streichen. Okay, Streichen. aber wie sagt man, कैसे कहा जाएगा wenn wir uns selbst machen, अगर ये काम हम खुद करेंगे। Wir Wir streichen Wir streichen unsere unsere Wohnung, ganz easy। Wohnung. ohne lassen, lassen के बगैर। Okay, wir streichen unsere Wohnung, हम अपने अपार्टमेंट को पेंट कर रहे हैं। alles klar? फरहान, आयशा, हुसैन, सईदा Yes. फातिमा, उमर अली, जियाद, शफीक। लेकिन ओके। सर अगर हम कोई चीज अपने आप कर रहे हैं तो हम्म, उसमें हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे नहीं पोजीशन उमर, कोई चीज़ जो हम अपने आप कर रहे हैं उसके लिए रिफ्लेक्सिव अब यूज़ नहीं होता। वो चीज़ जो हम अपने आप कर रहे हों और खुद अपने लिए कर रहे हों, अपने ऊपर कर रहे हों। ओके सर ओके Okay, zum Beispiel ich उसके लिए dusche यूज कर mich, सकते हैं ich wasche mich। या सर समझ रहा हूँ जी लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को धो रहे हो तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है उमर। ओके, ich wasche mein Auto, das ist kein reflexive Verb। जी सर Wenn या ich mich wasche, अगर मैं अपने आप को धोऊं या नहाऊं तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब होगा। ओके, वेरी गुड। या सर डन। ही इज रिपेयरिंग हिज बाइसाइकिल, वो अपनी बाइसाइकिल को रिपेयर कर रहा है। er macht das selbst, वो खुद कर रहा है इस काम को। wie sagt er, वो कैसे कहेगा। oder wie sagen wir, हम कैसे कहेंगे कि वो अपनी बाइसाइकिल को रिपेयर कर रहा है। Reparieren sein Fahrrad. er repariert sein Repariert. Fahrrad, Fahrrad. er repariert sein Fahrrad means he is repairing his bicycle। Sein aber Fahrrad. jetzt, अब er macht das nicht, वो इस काम को नहीं कर रहा, sondern बल्कि der Mechaniker macht das für ihn, अब कोई दूसरा उसके लिए इस काम को कर रहा है। dann wie sagen wir, हम कैसे कहेंगे कि he is getting his bicycle repaired, वो अपनी बाइसाइकिल को रिपेयर करवा रहा है। er Er lässt Lässt lässt, sein er lässt sein Fahrrad 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 reparieren. Mechanic reparieren। मैकेनिकल को बीच reparieren से पहले रखेंगे ना मैकेनिकल फोन Fahrrad. का इस्तेमाल कर सकते हो आप, लेकिन वो इंसान जो उस काम को आपके लिए कर रहा है उसको मेंशन नहीं किया जाता यूजुअली। ओके, आप सिर्फ इतना कहते हो कि मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूँ। किससे करवा रहे अच्छा हो इसको मेंशन reparieren के बाद फोन मैकेनिकल लगा सकते हैं. नहीं। अगर फोन आपको लगाना है तो आप हमेशा रिपेयरियन से पहले लगाओगे। ओके, Das sein Fahrrad von Mechaniker reparieren. Okay. बिल्कुल। लेकिन ये फोन जो है फिर वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मैकेनिका जो है वो डेया होता है। ओके, और फोन एक डाटिव प्रेपोजिशन है इसके। ओके, इसको आगे चलकर Alles कवर klar, करेंगे। alles klar. वेरी गुड।
ओके सो वो अपनी बाईसाइकिल रिपेयर करवा रहा है लिस्ट जाइन फागाट reparieren मैं अपनी बाईसाइकिल रिपेयर करवा रहा हूँ ich lasse mein Fahrrad reparieren हाँ ये तुम अपनी बाईसाइकिल रिपेयर करवा रहे हो du lässt dein Fahrrad reparieren क्या तुम अपनी बाईसाइकिल रिपेयर करवा रहे हो lässt du dein Fahrrad reparieren? sehr gut lässt du dein Fahrrad reparieren नाइन नहीं मैं अपनी गाड़ी रिपेयर नहीं करवा रहा हूँ बल्कि मैं तो उसको खुद रिपेयर कर रहा हूँ wie sagt man formulieren Sie दोबारा रिपीट प्लीज kompletter Satz formulieren Sie kompletter Satz mit einem Konnektor एक कनेक्टर के साथ बनेगा ये सेंटेंस मैं अपनी गाड़ी रिपेयर नहीं करवा रहा बल्कि मैं खुद इसको रिपेयर कर रहा हूँ Father, बल्कि आबा बल्कि नहीं verb होता sonder Son, जोन sehr gut ओके verbinden Sie beide Sätze इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करें Ich repariere meine Auto selber भी कह सकते हैं जेल्बा ये तो दूसरा सेंटेंस है पहला सेंटेंस क्या होगा जियाद ich lasse mein Fahrrad nicht reparieren, sehr gut sondern ich sondern ich repariere repariere mein das Fahrrad. ich repariere das selbst मैं इसको खुद रिपेयर कर रहा हूँ alles klar Ich क्लियर सबको repariere मोहम्मद das हुसैन सईदा फातिमा सर उमर selbst लिखना words yes, selbst sir. selbst ओके selbst का मतलब मतलब है होता कि है myself. myself बिल्कुल myself ओके अच्छा जेल्बर में क्या फर्क है ये कोई एक ही डिफरेंस चीज नहीं है एक ही बात है एक ही बात है एक ही बात हालिस क्ला यहाँ तक क्लियर है सबको बाकी लोग भी स्पीकिंग में पार्ट लिया करें कोशिश किया करें फैजुगन सी Yes, teilzunehmen sir. okay so you get your computer set up du lässt deinen Computer installieren okay du lässt deinen Du lässt Computer installieren deinen Computer installieren okay installieren installieren. reparieren beide sind internationale Verben ये दोनों क्या हैं international verbs हैं अगर आपको याद हो International words. very good done Ich lasse mein I repair my shoes. मैं अपने जूतों की मरम्मत खुद कर रहा हूँ. Ich repariere ich repariere meine Schuhe. Ganz einfach. Aber jetzt meine habe ich Schuhe. keine Zeit. अब मेरे पास वक्त नहीं है. I get my shoes repaired. मैं अपने जूतों की मरम्मत करवा रहा हूँ. Ich lasse meine Schuhe reparieren. Verstehen Sie? We get our है garden maintained. We get our garden maintained. Wir lassen unseren Garten pflegen. Pronounce with me, pflegen. प्लेग Pflegen ओके means to maintain something. किसी चीज को maintain करना. Alles klar? Okay, dann ज्यादातर ऐसे ही काम होते हैं reparieren, reinigen, putzen, waschen ये वो काम है जो हम दूसरों से करवाते हैं इसीलिए आपको ये वर्ब्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आप सोचेंगे कि यही वर्ब्स क्यों देख रहे हैं हम बार बार क्योंकि यही वो काम है जो हम दूसरों से करवाते हैं हम ज्यादातर यूजुअली खुद नहीं करते ओके he gets his phone repaired er lässt sein Handy reparieren mein Handy ist kaputt मेरा फोन टूट गया है und jetzt lasse ich mein Handy reparieren. I'm getting my phone repaired. You get your bike cleaned. तुम अपनी बाइक धुलवा रहे हो या साफ करवा रहे हो वॉश्ड भी हो सकता है वॉश्ड वॉश के लिए कौन सा यूज किया जाएगा Waschen. waschen ganz einfach so अच्छा du lässt dein Fahrrad reinigen oder waschen Reinigen. मैं Okay. अपना कमरा धो रहा हूँ reinige Ich, ich reinige reiniगे ich mein reinige. Zimmer. Ich reinige mein Zimmer. वाशे नहीं कर सकते इस वाशे Ich Das Zimmer wasche होता है. washe का मतलब है किसी चीज को धोना किसी ऑब्जेक्ट को ओके ओके जबकि गाइनिगन का मतलब ही सफाई होता है सफाई करना सर्फ वगैरह से ना डिटर्जेंट से सो वाशन भी कह सकते हो आप ठीक है इतना मुश्किल नहीं है हाँ शफीक हसन फाई कोई क्वेश्चन
सर मैंने कहा था 10 सिमा होता है। 10 सिमा होता है बिल्कुल, इसीलिए माइन सिमा हो जाएगा। ओके, माइंस इश ओके। गाइनिगे माइन सिमा, मैं Schweinige अपना कमरा Mainzimmer। धो रहा हूँ या साफ कर रहा हूँ। अब jetzt habe ich keine Zeit, अब मेरे पास वक्त नहीं है। Jetzt अब macht die andere Person für mich, अब कोई दूसरा इस काम को मेरे लिए कर रहा है। Wie sage ich, मैं कैसे कहूँगा? Ich lasse Ich mein Ich lasse Zimmer mein lasse Zimmer mein Zimmer reinigen. 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 Reinigen Verstehen oder Sie? waschen. Ja. Sehr gut, Okay. sehr gut. Dann Present or Past. Im Präsens nennt man lassen auch lassen. प्रेजेंट में तो लासन को लासन ही कहा जाता है, aber auch in Präteritum, Präteritum यानी पास्ट में Mit dem lassen. lassen ist auch lassen. Der Partizip 2 von lassen ist auch lassen. lassen का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी lassen होता है। कितना इजी है। Zum Beispiel ich lasse mein Auto waschen. I get my car washed. मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा था या मैं अपनी गाड़ी धुलवा चुका हूँ। Ich habe mein Auto waschen lassen. Verstehen Sie? So, wenn wir über Vergangenheit sprechen, when we talk about past, जब भी हम past के बारे में बात करते हैं, then benutzen wir immer Perfektsatz. तो हम हमेशा एक perfect के जुमले का इस्तेमाल करते हैं। उन in einem Perfektsatz, एक perfect के जुमलों में steht immer haben auf Position 2, अगर आपको याद हो। haben हमेशा कहाँ आता है? सेकंड पोजीशन पर। und Partizip 2, Partizip 2 steht immer am Ende, और past participle किसी भी verb का हमेशा सेंटेंस के एंड में चला जाता है। और याद रखिएगा कि Partizip 2 von lassen ist auch lassen। Partizip 2 lassen का खुद भी lassen ही है। Lassen hier. Alles klar, verstehen Sie? Alles klar. So, in diesem Satz benutzt man kein Partizip 2 von Infinitive। Infinitive Verb का Past Participle यूज नहीं किया जाएगा। Infinitive Verb अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। Zuerst kommt Subjekt, सबसे पहले क्या आएगा? Subject, dann kommt haben auf Position 2, dann Objekt. Nach dem Objekt steht immer ein Hauptverb auf Position 4. Infinitive। Okay? Und dann am Ende steht immer Partizip 2। एंड में हमेशा क्या होता है? Partizip 2 यानी past participle, और the participe 2 of lassen is also lassen। lassen का past participle भी lassen ही है। तो इतना ज्यादा जुमले में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। alles klar? सो मैं अपनी गाड़ी धुलवा चुका हूँ या मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा था। Ich habe mein Mein Auto Auto waschen. waschen Waschen lassen. lassen। Waschen. Okay, फॉर्मुलेशन जी मित मिया, मेरे साथ चीज़ों को फॉर्मुलेट करें। जाकेश जेड से मैं सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ auf उर्दू, उर्दू में। ओके, सो फॉर्मुलेशन जी auf Deutsch, इसको जर्मन में कंप्लीट करें। मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ। ich, Ich wasche mein Auto। Ich wasche mein Auto। मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा हूँ। Ich Ich lasse lasse mein mein Auto Auto Lasse waschen. mein Auto waschen। waschen. मैं अपनी गाड़ी धुलवा चुका हूँ। Ich Ich habe habe mein Ich mein habe Auto mein Auto waschen lassen. waschen, Auto waschen Lassen. ich habe lassen। mein Auto waschen lassen। वेरी गुड। क्या तुम अपनी गाड़ी धुलवा चुके हो? Hast du dein Auto waschen lassen? नहीं, मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा हूँ। Nein, ich habe mein Auto waschen lassen. Nein, धुलवा रहा हूँ। Ich Ich lasse. ich lasse mein Auto lasse। ich waschen. Ja, lasse ich lasse mein ich Auto lasse mein Auto waschen। waschen. sehr gut। हाँ, मैं अपने बाल काट रहा हूँ। Ich, Schneide ich ich schneide schneide mir die Haare. mir die Haare। mir schneide die mir die Haare, Haare। मैं अपने लिए बाल काट रहा हूँ। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। ich Ich lasse lasse mir ich lasse mir die Haare Schneiden. schneiden। मैं schneiden। अपने बाल कटवा चुका हूँ। I got my hair cut। Ich habe Ich mir die habe Haare schneiden lassen. mir die Haare schneiden तुमने lassen। अपने बाल कब कटवाए थे? wann 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 hast du hast du dein Haare Wann hast du schneiden? dir die Haare schneiden lassen? Schneiden lassen. मैंने अपने बाल कल कटवाए थे। gestern ich habe Mein gestern Haar mir die Haare schneiden lassen। alles lassen. klar? Okay. Ja.
obviously. अगर आप लासन का यूज नहीं करोगे und sagst du हमेशा आप मुझे कहोगे कि ich habe gestern mir die Haare schneiden, इसका ये मतलब होगा कि आपने कल अपने बाल खुद खुद काटे काटा। हैं। और जब तक आप लासन का यूज नहीं करोगे सामने वाला यही समझेगा कि ये काम आपने खुद किया है। अगर आपको ये बताना है कि ये काम आपने किसी से करवाया है, hast du das nicht gemacht, तो आप हमेशा लासन का ही इस्तेमाल करोगे। ओके, और फिर शफीक जो आजम मेन फागे। वर्ब है, वो जो मेन वर्ब है वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में ही आएगा बिल्कुल एकदम लास्ट से बिल्कुल पहले। बिल्कुल, Hauptverb steht immer im Infinitiv, auch im Perfekt। पास्ट में भी परफेक्ट में भी वो हमेशा इन्फिनेटिव ही रहेगा। और पास्ट में जो पार्टिसिप्स आया है वो लासन का इस्तेमाल किया जाएगा, और लासन का पास्ट पार्टिसिपल भी लासन ही होता है। ओके, यस गुड। ब्रो। शफीक आजम फागे कोई क्वेश्चन? सर ये एक कंफ्यूजन थी, क्वेश्चन। हेयर कट वाला जो सेंटेंस है उसमें हम्म, हम मिया और डिया यूज़ कर रहे हैं, वो स्नाइडन की वजह से है। हाँ बिल्कुल, स्नाइडन की वजह से। आप इसमें मायने का इस्तेमाल भी कर सकते हो शफीक, जैसे जागस्तू आप कह सकते हो कि इश लसे मायने हागे स्नाइडन, आप मायने का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मायने बिल्कुल, वो हागे, काम जो ओके। आप अपने लिए करते हो उसमें ज़्यादातर डाटिव इन्वॉल्व होता है, सो डाटिव की वजह से हाँ इसमें आप मियाँ का इस्तेमाल करते हो। जबकि जैसे हम कहते हैं ना, इश फुट से, इश फुट से मायने सेने, ओके, इश मुट से मायने सेने, मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ। सेने कहा जाता है टीथ जी। को, ओके। तो आप ऐसे भी कह ओके। सकते हो कि इश फुट से मियाँ दीद सेने, मैं अपने लिए दांत साफ कर रहा हूँ। तो बाइड इज इनकरेक्ट, दोनों ठीक है। यहाँ ओके। मियाँ दी की जगह मायने का इस्तेमाल भी किया जा सकता है इन beide Situationen, दोनों सिचुएशंस में। ओके, ठीक है। ओके। और अगर गेस्टन आ जाएगा तो गेस्टन हावे इश हो जाएगा फिर, राइट? बिल्कुल, gestern habe ich meine Haare schneiden lassen। स्नाइडन लासन, Alles ओके। klar? Okay, dann कैन आई आस्क क्वेश्चन? हाँ, आयशा कोई लासन। क्वेश्चन? यस। हम्म, लासन के अलावा कोई ऐसा है जो ना जिसमें हम कोई बना सके? आई एम जस्ट आस्किंग कि ये वाला जो हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो सिर्फ लासन के लिए है कि जब हम कुछ करने दे रहे होते हैं, या किसी और चीज में भी ये ऐसे बोल सकते हैं? मैंने कभी देखा नहीं है। आयशा स्ट्रक्चर की अगर आप बात कर रही हो, तो ये जो हम्म। स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब एंड में आता है, मैं यहाँ लिख और देता हूँ जहाँ पे खत्म हो शाइबेशिया। जाता है पर ग्रापर गिरन तक खत्म हो जाता है ना, लासन भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एंड आयशा, और कोई और वर्ड भी लग सकता है इधर? देखो आयशा जैगूड, अच्छा सवाल है। जुबिएक्ट, लासन, ऑब्जेक्ट und इन्फिनिटिव वर्ब। ओके, इन्फिनिटिव वर्ब, ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? यहाँ तक तो सबको पता है। ओके, देन auf Position 2, पोजीशन 2 पे एस खान werden sein, यहाँ werden भी हो सकता है, जो हमने फ्यूचर में पढ़ा था अगर आपको याद हो, फुटुआ, याद आया? और यहाँ सेकंड पोजीशन पर कोई मॉडल वर्ब भी हो सकता है आयशा, याद है सबको मॉडल वर्ब्स? हाँ जी। बिल्कुल। तो सेकंड पोजीशन पर हमेशा लासन भी आ सकता है, werden भी आता है, और मॉडल वर्ब भी आता है, और ये स्ट्रक्चर सेम रहता है इन्फिनेटिव वाला। ओके, तो ये तीनों में एप्लीकेबल है ये स्ट्रक्चर। और इसके अलावा आयशा, हाँ यस। और अगर आप ये पूछ रही हो आयशा कि लासन का इस्तेमाल क्या सिर्फ और सिर्फ किसी काम को करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो गेट समथिंग डन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लासन का इस्तेमाल और भी सिचुएशंस में किया जाता है जर्मन में। उन 10 शाउन विया स्पेडा, इसको आगे चलकर देखेंगे कि लासन का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ओके, ओके। और जो हमने ये दूसरा भी पिक्चर बनाया हुआ है जिसमें रापा गिरा लासन लिखा हुआ है, ऐसे कोई और वर्ड्स भी लगते हैं इस तरह? हाँ नहीं, मतलब ये ये जो वाला वर्ड स्ट्रक्चर है समझ आएगा परफेक्ट का जो लेकिन स्ट्रक्चर हमारा है वो ये पढ़ना है। मुख्तलिफ, आयशा ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये सिर्फ परफेक्ट के लासन के जुमलों में साथ लगेगा? बिल्कुल ये सिर्फ लासन के साथ ही लगेगा, कि पार्टिसिप्स वाई से पहले एक और वर्ब, ये सिर्फ लासन के साथ ही होगा। ओके। ओके, ओके। वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ आया ये कॉन्सेप्ट? शफीक, जियाद, उमर, सईदा यस फातिमा, हुसैन, मैरीन, फरहान, हुमैर, यस। अलस्कला। Yes, ओके, sir. वेरी गुड। सो he he got his bike repaired,
सबसे पहले तो मुझे बताया जागमिया कि वो अपनी बाइक रिपेयर कर रहा है, macht er selbst, वो इस काम को खुद कर रहा है। wie sagen wir, हम कैसे कहेंगे कि er Er repariert repariert Er sein, lässt er Auto. repariert sein Fahrrad. sein Fahrrad, sein Auto oder sein Motorrad। Motorrad, Motorrad भी कहा जाता है बाइक को। ओके, जेलबर्ड नहीं लगा सकते इसके अंदर, जाइन ऑटो जेल्बा, नहीं जेल्बा कर सकते। का इस्तेमाल आप कर सकते हो बिल्कुल, अगर ओके। आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि वो खुद कर रहा है हाँ तो आप जेल्बा का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन यूजुअली नहीं किया जाता। हाँ, फोकस पर अगर करना जरूरत हो, नहीं है जलवा की इस्तेमाल इतना। बिल्कुल अगर फोकस करना हो, ये बताना हो कि वो खुद कर रहा है, वो चीज़ आपके फोकस में हो, स्पेशल हो आपके लिए, हाँ ये एग्जैक्टली। बताना। हम्म तो जैसे यूजुअली मैं आपको कहता हूँ कि ich wasche mein Auto, लेकिन हम्म aber heute sage ich meistens, मैंने आपको जब भी ये कहा ich wasche mein Auto, dann benutze ich immer selbst। क्यों? क्योंकि आज आपको ये बताना ज़रूरी है। आज ये हम्म टॉपिक हमारे फोकस में है कि कोई काम हम किसी से करवाते हैं या खुद करते हैं, तो इसीलिए मैं जेल्फ्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ आज। इससे पहले मैंने कभी जेल्फ का इस्तेमाल नहीं किया, आपने देखा हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, ऑब्वियसली मैं ही कर रहा हूँ इस काम को। ओके, ये तो जनरल सेंटेंसेस है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेल्ब किसी से बात करते हो तो खुद भी बिल्कुल, फोकस होता है जेल्ब के ऊपर। एक बिल्कुल ऑब्वियसली वन ऑन फोकस वन। होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिकली अगर किसी बात को बोला जाए कि ये काम मैं खुद ही करूंगा तो फिर जेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। जी ओके। सर एक हम्म बाइस्पिल बताऊं। सही है फातिमा। सर इस लास्ट से मायने हागे स्नाइडन। ठीक है। हम्म, अब ऑब्वियसली मैं अपने बाल खुद तो बहुत कम लोग काटते हैं, राइट, फिजियोर से ही आप कटवाते बिल्कुल हैं अपने बाल। ठीक है, वेमेन जो है वो सैलून चली जाती हैं, सही है। तो इस लास्ट से माइन हागे स्नाइडन को अगर मैं बोलूं इस लास्ट से माइन हागे जेल्बर स्नाइडन, तो या जेल्बर लगाऊं तो वो इट विल नॉट मेक सेंस। लासे आ गया ना तो जेलबर क्यों आएगा फिर। हाँ बिल्कुल सिर्फ मतलब ओनली लासन इज क्वाइट इनफ टू एक्सप्रेस दिस। बिल्कुल बिल्कुल, लासन का मतलब ये है कि du machst das nicht, आप उसको नहीं कर रहे हो, sondern die या andere Person macht das für dich, कोई दूसरा उस काम को आपके लिए कर रहा है। ओके, zum Beispiel, हाँ, मॉडल वर्ब की अगर बात की जाए, सो मॉडल वर्ब्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ich Objekt. Plus möchte, modal verb, sehr gut, ich möchte Objekt, meine Haare, Objekt, sehr gut, meine meine Haare Haare. Plus infinitive plus Schneiden. verb, infinitiv schneiden। schneiden. इसका क्या मतलब हुआ? Du gehst सो फ्रीजॉय, आप जो है वो फ्रीजॉय यानी बार्बर के पास गए, und sagst du, आपने कहा कि ich möchte meine Haare schneiden, I would like to cut my hair, वो कैंची आपके हाथ में पकड़ा देगा और आपको बिठा देगा, बोलेगा शुरू हो जाओ। सही है। तो sagst du nicht कि ich möchte meine Haare schneiden, इसका मतलब ये है कि I would like to cut my hair, मैं अपने बाल काटना चाहता हूँ। sondern sagst du, बल्कि आप कहोगे ich möchte meine Haare schneiden lassen, लासन। लासन am Ende। देखो मॉडल वर्ब्स के केस में भी जो लासन है, स्टेट इमा am Ende, हमेशा एंड में आएगा, ऑफ पोजीशन स्वाय स्टेट इमा ein Modal Verb। ओके, सो आप अपनी गाड़ी लेकर गए कार वॉश पे, und sagst du, आप कहोगे कि ich möchte mein Auto waschen, तो वो पाइप आपके हाथ में दे देगा और बोलेगा शुरू हो जाओ। अगर आपको गाड़ी धुलवानी है उससे, तो आप कहोगे ich möchte mein Auto waschen lassen। ओके, Lassen. आई वुड लाइक टू गेट माई कार वॉश्ड। हालिस क्ला, समझ आया सबके? या Yes. ओके, वेरी सर गुड। लेकिन इसमें ये चीज भी है कि अगर मैं लेट्स सपोज वहाँ सैलून में अपने बाल कटवा रही हूँ ऑलरेडी, और मेरी अम्मी की कॉल आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल और वो मुझसे पूछती है व्हाट्सएप या मतलब तुम क्या कर रही हो, तो फिर मैं यही बोलूंगी इस लास्ट से मायने हागे स्नाइडन, राइट। बिल्कुल, मैं अपने बाल कटवा रही हूँ इस से मायने हागे schneiden, बिल्कुल, लेकिन अपने डिजायर को शो करने के लिए फ्रीजोया के पास जाकर के मुझे अपने बाल कटवाने हैं, उसके लिए फिर आप लासन एंड पे आएगा, यस। लासन एंड में, क्योंकि आप अपनी डिजायर को शो कर रहे हो, डिजायर को शो करने के लिए मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है मिशन का। या ओके, यस सर। मिशन भी हो सकता है और इसकी जगह एक और मॉडल वर्ब हो सकता है, कौन बताएगा? Mag, Ich will, will, ich इस will, विल। oh, will. ओके ich will, will kommt विल aus तो wollen, wollen से आया है, wollen और मिशन में क्या डिफरेंस है, das kennen Sie alle, ये सबको पता है। ओके, very सर good, और विल का मतलब आपने समझाया था कि अब आपने इरादा कर लिया, ये मस्ट है कि आप करोगे ये चीज। बिल्कुल, will का मतलब है मैं चाहता हूँ, कैजुअली, कैजुअली या इसको यूज किया जाएगा। very सर good, ये लासन तो फिर किसी भी सेंटेंस के पीछे लगा दें तो
उसका कोई भी मतलब काम, मैं कह रहा हूँ होmer इशर कोई भी बाइते, काम। मैं कह रहा हूँ इशर बाइते मतलब मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इशर बाइते। अब मैं अगर बोलूँ इशर बाइतन लासन तो उसका मतलब भी बिल्कुल, चेंज हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो होmer के यट्स ओके होmer ich gebe dir eine Aufgabe, मैंने आपको एक Aufgabe टास्क दिया und du machst diese Aufgabe selbst, आप उस काम को खुद कर रहे हो ओके। अब heute hast du keine Zeit, अब आपके पास आज वक्त नहीं है, तो आप कहोगे कि ताला भाई ich lasse diese Aufgabe machen, मैं ये काम किसी और से करवा रहा हूँ, weil ich keine Zeit habe, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है ओके। ich mache meine Aufgabe, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, oder ich lasse meine Aufgabe machen, I get my work done ओके। तो जी कोई भी काम हो जिंदगी में जो आप किसी से करवा रहे हो उसके लिए लासन का यूज किया जाएगा। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, सफाई भी हो सकती है, रिपेयरिंग हो सकती है। alles klar? सर वैसे इश आर्बाइटे लासन तो गलत सेंटेंस है ना? बिल्कुल तो इशाबाइट लासन इशलासे गलत, बिल्कुल। इशलासे होता है इशलासे इशलासे बाइते। arbeiten, इशलासे arbeiten means I get work done, okay? ओके। Alles klar? Okay, sehr यस gut, सर। सर dann और आप जब सर हैं मतलब आपको उन्होंने पूछा तो लाइक उन्होंने बोला कि तला भाई मैं आज काम नहीं कर सकता, मैं किसी और से कराऊंगा, तो उसमें वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि darf बिल्कुल ich diese Hausaufgabe machen lassen, machen lassen, बिल्कुल। या किसी और Ich से मैं habe करवा heute, दूं। बिल्कुल sehr gut सईदा फातिमा, ich habe heute keine Zeit, आज मेरे पास वक्त नहीं है। darf ich meine Aufgabe machen lassen, माखन क्या मैं लासन अपना ओके। काम किसी और से, या erledigen lassen, क्या मैं अपना काम किसी और से कंप्लीट करवा सकता हूँ, या du kannst deine Aufgabe machen lassen, तुम अपना काम करवा सकते हो ओके। alles या klar? alles klar। sehr gut, यस क्लियर। dann he got his shoes clean, वो अपने जूते साफ करवा रहा था या करवा चुका है। er hat seine Schuhe putzen lassen, alles klar? Okay, then she got her phone fixed. Sie hat ihr Handy reparieren lassen. kein Partizip आया, आप देखें इसमें कोई reparieren का कोई past participle यूज करने की जरूरत नहीं है। You got your computer repaired. Du hast deinen Computer reparieren lassen. Sehr gut. Ich habe mein Auto waschen lassen. I got my car washed. I got my hair cut. Ich habe mir die Haare schneiden lassen. Okay, true and false. Schauen wir gerade, ob diese Sätze falsch sind. कि सेंटेंसेस गलत हैं या सही हैं, अब इस चीज को देखते हैं। हाँ, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किएगा। ओके, किसी के माइक से शोर आ रहा है, आई थिंक महरीन। ओके, डन। Lösen wir zusammen. मिलकर इसको करते हैं, nehmen Sie den Teil, Part लें। Ich lasse mein Auto mein Auto reparieren. reparieren. ये तो ठीक है। True. Das ist richtig. Okay. Richtig. Er lässt seine Haare schneiden. उमर अली, जियाद, काशान, हुसैन, ये भी ठीक सईदा है। फातिमा, मेरीन, फरहान, आयशा, nehmen Sie करेक्ट। den Teil, Part लें। Yes. ये भी करेक्ट, करेक्ट। ये भी ठीक है। Wir lassen unser Haus bauen. 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 Bauen means to to construct। construct. Sehr gut, to construct. ये सही है सर। ये भी ठीक करेक्ट। है। Du lässt dein Handy ये भी ठीक है। Sie lassen die Wohnung streichen. Reparieren. तो गलत क्या है जब सब तो ठीक है? Streichen. स्ट्राइशन का क्या मतलब है आयशा? नहीं आ रहा मुझे। स्ट्राइशन तो टू मींस पेंट, सर टू टू पेंट। पेंट, टू आपने कहा पेंट, टू पेंट पेंट। करने का सबरिलेशन। ओके। ओह, ओके। reparieren, schneiden, bauen, streichen, ये वो काम है ज्यादातर जो डेली लाइफ कम्युनिकेशन में हम किसी से करवाते हैं। ओके, then ich habe mein Fahrrad reparieren lassen. Das ist auch यस richtig, सर। hier bitte. Er lässt sein Hemd bügeln. Das ist auch richtig. Wir ये भी lassen सही den है। Teppich reinigen. Das ist auch richtig. तो इसमें गलत क्या है? Ich lasse meine Schuhe reparieren. Das ist रीजन ये auch richtig. Du hast deine Du hast Fenster dein Fenster putzen lassen. putzen lassen. तुमने अपनी खिड़कियां Ausräumen. साफ करवाई थी। ओके, sehr gut.
डन gehen wir weiter, आगे चलते हैं। हम्म One One last to mal wieder eine Haare. one वन less to वन लेस टू sehr gut, Lässt less to mal weiter schneiden. Ihr Dann last फिर last लास्ट ihr होगा euch ब्लाउ होगा ब्लाउ can लास्ट ईयर ऑयश के या फिर fotografieren. लास्ट और लेस्ट में तुक्के नहीं मारो, सेंटेंस का मतलब ही समझो। सब सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है। ई है Yes. sehr gut, हमने हमने नहीं उन्होंने जी उन्हें लासन फोटोग्राफी तुम So लोगों sie ने lassen sich Tommy bestimmt. Tommy und Lina wollen nicht mitkommen, वो लोग साथ में नहीं आना चाहते। ach sie lassen sich bestimmt noch überreden, sehr gut। इसका क्या मतलब हुआ सर? überreden का क्या मतलब है, कौन बताएगा? इसको बोलते हैं ना ऑपरेटर Überreden. सर रेडन का मतलब रेडन किसे कहते हैं? रेडन। बातचीत करने को Talk. तो überreden का क्या मतलब है? ऊपर से बात आपस में बात करना. आपस में überreden तो किसी persuade होता है इसका मतलब नहीं? को लाइक कन्विंस करना, किसी को Okay. कन्विंस करना। Hmm. ओके मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि टामी और लीना वॉलन निश मिथ कॉमन, वो लोग नहीं आना चाहते। Okay. तो उसने कहा अगजो अच्छा जी लासन जिच बिस्टिम नौकी बगड़न, वो चाहते हैं कि उन्हें कन्विंस किया जाए। बिस्टिम्ट नॉख überreden, sie ich lasse mich bestimmt noch überreden, मैं अपने आप को कन्विंस करवाना चाहता हूँ कि कोई मुझे कन्विंस करे। ओके Right. जय गुड। heute Lasse ich endlich mein Handy reparieren. Handy reparieren, alles klar। तो एंडलिश वाला फाइनली endlich Right. endlich means फाइनली finally, बिल्कुल finally। तो यहाँ पे bestimmt का क्या मतलब है? bestimmt का मतलब है हाँ specifically, bestimmt का मतलब होता है specifically। ओके जय गुड। और ये किससे निकला है ऐसा word? bestimmt ये वर्ब नहीं है। bestimmt bestimmt तो सिंपल सा एक वर्ड है जिसका मतलब है Word है. स्पेसिफिकली। bestimmt आर्टिकल याद है, डेफिनेट आर्टिकल या सर बिल्कुल के वैसे ही, bestimmt. बिल्कुल डेफिनेटली तो यहाँ पे आई थिंक इसका यही मतलब है जो आपने हमें बताया है ना कि वो डेफिनेटली यही चाह रहे हैं कि उनको अब कोई मनाए जाके उनको कोई कन्विंस कर ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही यहाँ है, पे भी डेफिनेट मतलब ही लग रहा है इसका बेस्टिम्ड का ना, बिल्कुल कि ऐसे नहीं वो आएंगे इनसे, वो चाह रहे हैं कि इनको पहले बात की जाए, इनसे कन्विंस किया जाए, इनको ओवर रेडन करो इनसे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। überreden means to नखरे Right. convince, कर रहे हैं सर वो सही नखरे कर बात, रहे हैं एग्जैक्टली। बिल्कुल। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब समझ आया सबको? वन लेस दो माल वीडा डाइन हागे schneiden, सर तुम ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसमें लास्ट ईयर और गेन फोटोग्राफी मतलब वो तुम लोग या अपनी तुम फोटोग्राफी तुम लोग या अपनी फोटोग्राफी कोई अच्छे से करवा रहे हो। करवा रहे हो, बिल्कुल वो पूछा जा रहा है उसमें। ओके ठीक है सर। sehr gut, okay dann mit Lasse. ich lasse sehr gut, du Lässt. er sie es सबके साथ लिस्ट है lässt und wir लासन Lassen. lassen फिर लास्ट ihr Last. last, okay sehr gut। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको कर सीखिएगा। ओके sehr gut done। ओके ganz wichtiges कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए। वन बेनुट्स मान lassen, lassen का इस्तेमाल कब किया जाता है? इन welche Situationen, किन सिचुएशंस में? wenn wir etwas nicht selbst machen, वो काम जब हम खुद कुछ नहीं करते, aber लेकिन die andere Person macht es für uns, कोई दूसरा हमारे लिए उस काम को करता है। dann benutzt man immer lassen, हमेशा lassen का इस्तेमाल किया जाता है। zum Beispiel for example ich lasse meine Haare schneiden, I get my hair cut, मैं अपने बाल कटवा रही हूँ। ganz einfach, ओके ये बुक की एग्जांपल है। और इसका परफेक्ट कैसे बनाया जाएगा? मैं अपने बाल कटवा चुकी हूँ। ich habe Meine Habe Haare meine meine Haare Haare lassen. schneiden lassen, das haben wir schon gesehen, अभी हमने देखा कि lassen का इस्तेमाल जब खुद किसी काम को दूसरे से करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो उस सिचुएशन में lassen का जो पार्टिसिप स्वाय है
वो भी लासन ही होगा। ओके, इस चीज को मैं क्यों समझा रहा हूँ बार बार, अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ कि सिर्फ जब कोई काम आप किसी और से करवाओगे, उस सिचुएशन में जो लासन यूज किया जाएगा, उस लासन का पार्टिसिप स्वाय लासन ही होगा। लासन का पार्टिसिप स्वाय हमेशा लासन नहीं होता है। या इस सिचुएशन में जब आप किसी और से कोई काम करवा रहे हो, यू गेट समथिंग डन बाय समवन, तो उस सिचुएशन में जो लासन आप इस्तेमाल करोगे, उसका पार्टिसिप स्वाय लासन ही रहेगा। ओके, सो लासन का इस्तेमाल हमने देखा, वन benutzt man lassen wenn wir etwas nicht selbst machen। वो काम जो हम कभी खुद नहीं करते उसके लिए benutzen wir lassen, लासन का इस्तेमाल करते हैं। देन benutzen wir auch lassen, हम लासन का इस्तेमाल भी करते हैं when wir etwas nicht mitnehmen wollen, when we don't want to take something along। Was bedeutet mitnehmen? Mitnehmen का क्या मतलब होता है? साथ ले जाना किसी चीज को। Mitnehmen means to take something away, नहीं शफीक, along। ओके, away नहीं, along। Ich टेक अलोंग। nehme das Buch mit। Ich nehme das Buch mit। मिड नेम है। इसका मतलब है कि I take this book along, मैं इस किताब को अपने साथ ले रहा हूँ। अब वन benutzt man lassen, लासन का इस्तेमाल कब किया जाएगा? When wir etwas nicht mitnehmen wollen, when we don't want to take something along, कोई चीज अगर हमें अपने साथ ना लेनी हो, lassen wir diese Sache, हम उस चीज को lassen यानी छोड़ देते हैं। lassen means to leave something, किसी चीज को छोड़ देना, to leave something behind। Zum Beispiel, kann ich mein Koffer hier lassen? क्या मैं अपना सूटकेस यहाँ छोड़ सकता हूँ? Verstehen Sie? यस सर। Kann ich meine Koffer hier lassen? मैं अपना सूटकेस यहाँ छोड़ रहा हूँ। lasse, ich lasse meine Koffer hier, मैं अपना सूटकेस यहाँ छोड़ रहा हूँ। In diesem Satz lassen bedeutet to leave। इस सेंटेंस में lassen का मतलब है to leave, छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना। Ich lasse mein Auto hier, मैं अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ रहा हूँ। Ich lasse mein Handy hier, मैं अपना फोन यहाँ छोड़ रहा हूँ। ओके, मैंने अपना फोन घर पे छोड़ दिया है। Ich habe meine Handy zu Hause lassen. Ich habe mein Handy zu Hause Ja, gelassen, zu Hause. gelassen, Okay. gelassen। Okay. यही आपको बताने का मकसद था कि लासन का जो हाँ, पास्ट पार्टिसिपल है वो हमेशा लासन नहीं होता। वो लासन जो आप टू लीव समथिंग, किसी चीज को छोड़ देने के लिए इस्तेमाल करते हो, उस लासन का पार्टिसिप स्वाय गिलासन होता है। ओके, गिलासन। Ich habe mein Handy zu Hause vergessen। मैं अपना फोन घर पे भूल गया हूँ। Oder ich habe mein Handy zu Hause gelassen। मेरा फोन घर पर रह गया है। I left my phone at home। Ich lasse meine Koffer hier। मैं अपना सूटकेस यहाँ छोड़ रहा हूँ। Ich habe keine Zeit, मेरे पास वक्त नहीं है। Ich lasse mein Auto hier। मैं अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ रहा हूँ। Verstehen Sie? To leave something behind, किसी चीज को कहीं छोड़ देना, उसके लिए भी lassen का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं है कि lassen का इस्तेमाल जब किया जाएगा wenn du etwas nicht selbst machen, जब आप किसी काम को खुद नहीं करो। alles klar? Verstehen Sie? आयशा, सैदा यस फातिमा, सर। यस सर। सर इसमें उमर, माइनन हुसैन, ये डाटिव की वजह से हुआ है ना? meinen ओ सॉरी, अकुजाटिव। सर Akkusativ, एक्यूजेटिव है ये die लास्ट में। Koffer होता है ना, die Koffer। alles klar? जी सर, जी सर। Sehr gut। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि lassen का इस्तेमाल दो सिचुएशंस में किया जाता है। ओके, schauen wir dritte Situation। थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या है? Erlauben। Was bedeutet erlauben? Erlauben to means be allowed. to allow। एडवांस इस्ट ड्योरफन। बिल्कुल, बिल्कुल ड्यूफन की तरह है। लेकिन erlauben का मतलब है किसी को इजाजत देना, या इजाजत देना, इजाजत देना। Zum Beispiel, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। Ich
lasse, dish, gehen. Allowed. Ich lasse dich gehen. I let you go. मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ. Erlauben. Erlauben means इजाजत देना. Oder nicht erlauben या इजाजत का ना देना. Zum Beispiel, for example, ich lasse mein Kind nicht Fernsehen. मैं अपने बच्चे को टीवी देखने की इजाजत नहीं देता या टीवी देखने नहीं देता. When you don't let someone to do something, जब आप किसी को भी काम नहीं करने देते या करने देते हो, इजाजत के लिए लासन का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, alles klar. Yeah. और इस सिचुएशन में भी लासन का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो लासन ही रहता है, गिलासन नहीं होता. गिलासन कब होता है? सिर्फ एक सिचुएशन में. वो सिचुएशन कौन सी है? Nicht mitnehmen. निश्मित नेमन. तो Vergessen. 3 सिचुएशंस हैं हमारे पास. सिचुएशंस को ऐसे याद रखें. पहली सिचुएशन क्या है? निश्ट जेल्स माखन. निश्ट जेल्स माखन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा. निश्ट जेल्स माखन का मतलब है कि व्हेन वी आर एट वास निश्ट जेल्स माखन, जब कोई काम हम खुद नहीं करते, बेनुट्सिन वी आर लासन, हम लासन का यूज करते हैं. और निश्ट मित नेमन, वो चीज जो हम खुद अपने साथ नहीं लेते, बेनुट्सिन वी आर लासन, हम लासन का यूज करते हैं. alles klar. Und auch nicht erlauben. nicht erlauben का मतलब है कि किसी काम की इजाजत देना या नहीं देना. बेनुट्सिन वी आर लासन. उस सिचुएशन में भी लासन का ही वर्ड यूज किया जाता है. और इस सिचुएशन में भी लासन के साथ क्या आता है? इन्फिनिटिव. zum ऐसे Beispiel नहीं कह सकते ich lasse meine Kinder nicht fernsehen. Fernsehen. बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं. schon ये steht drauf, यहाँ लिखा हुआ है आयशा कि ich lasse mein Kind nicht Fernsehen. ओके, मुझे लगा अभी जो हम लासन आप बता रहे हैं उसका स्पेसिफिक बात है कि निश्ट के साथ एंड पे लासन लगाना है. मुझे ये समझ आ रहा था. ओके, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, लासन मतलब हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही आएगा. ओके, हमेशा सेकंड पोजीशन पर आएगा तीनों केसेस में. ओके, मुझे ये लग रहा था. ओके, मुझे समझ आ गया. Perfect में end पे आएगा. परफेक्ट में एंड में आएगा. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि लासन जो पार्टिसिप्स वाई वाली बात है ना, वो हमने यूज करनी है निश्चित वाले केस में, और जब हम किसी को करने दे रहे होंगे कोई चीज तो हम सेकंड वाली पोजीशन पे लगा सकते हैं लास्ट लेस्ट. और ये बात मुझे ये समझ आ रहा था. नहीं नहीं आयशा, तीनों सिचुएशंस में लासन हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही आएगा. ठीक है, देखो आ इसमें भी सकता है सेकंड और पोजीशन पर परफेक्ट. और समझ आ इसमें भी सेकंड पोजीशन पर आएगा. इशला से माइने खोफा. और इसमें भी सेकंड पोजीशन पर इशला से माइने हागे schneiden. alles klar. So, गया. 3 सिचुएशंस हैं. Ich wiederhole, मैं रिपीट कर देता हूँ. Nicht selbst machen, nicht mitnehmen und nicht erlauben oder erlauben. Alles klar? Okay, dann machen wir ein paar Übungen. कुछ एक्सरसाइजेस को करते हैं मिलकर. Okay. Welche Bedeutung hat lassen? या किस सेंटेंस का मतलब है, उसके साथ कौन से lassen की मीनिंग इस्तेमाल की जाएगी? Khoisenzian, इसको क्रॉस करना है. Zum Beispiel, ich lasse meine schwere Tasche zu Hause. Mitnehmen, nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen, erlauben oder nicht selbst machen? कौन सी सिचुएशन है? Nicht mitnehmen, sehr gut. Dann, ich lasse mein Auto in der Werkstatt Nicht selbst reparieren. machen. Nicht Nicht selbst selbst machen. Nicht selbst machen, sehr gut. Ich lasse meine kleine Tochter nicht Fernsehen. Nicht erlauben. Erlauben. nicht erlauben. Nicht erlauben, sehr gut. Einen Moment. Nicht erlauben. Dann kann ich meinen Koffer am Flughafen lassen. Nicht mitnehmen. Mitnehmen. Nicht mitnehmen, sehr gut. Ich muss meine Haare schneiden lassen. Nicht selbst machen. Nicht selbst machen, sehr gut. Wir haben den Vogel fliegen lassen. Erlauben. mitnehmen. Mitnehmen. Haben. होमेर mitnehmen का मतलब है चिड़िया पकड़ के घर ले आए. Erlauben. हमने चिड़िया को उड़ने दिया, जाने दिया, उसको अलाउ कर दिया कि जा भाई चली जा. वो याद है बचपन में चिड़िया लेके उड़ाते थे.
तो वैसे ही है, wir haben den Vogel fliegen lassen. ओके, हाँ, हमने चिड़िया को उड़ने दिया, जाने दिया। तो इसका मतलब हमने उसको अलाउ किया। So erlauben. Alles klar? Verstehen Sie? Sehr gut. Okay. Dann haben wir viele Übungen, काफ़ी exercises हैं। Aber machen Sie alle Übungen zu Hause. इन सब exercises को घर से कीजिएगा। Am Ende machen wir eine Sprechübung. Speaking करते हैं एंड में und beenden wir heutige Vorlesung। आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप कि यू गाइस एंजॉयड दिस लेसन। लेसन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, सो आई होप कि यस आज वो क्लियर तो हो गया मतलब होगा। कैसे समझते हैं इतनी मतलब एक ही चीज को बोलने के लिए, मतलब अलग अलग चीजों को बोलने के लिए एक ही सेंटेंस यूज करते हैं बिल्कुल मतलब। ऐसा ही है, तो ज़्यादा सिचुएशंस वेरी करती हैं। और आप देखो तो इंग्लिश के मुकाबले में आई थिंक ज़्यादा आसान है ये, क्योंकि इंग्लिश में फिर टू गेट समथिंग डन हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। हाँ मतलब इंग्लिश में सर थोड़ी ग्रामर ज्यादा बिल्कुल, कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि सबसे जर्मन में आसान तो उर्दू में है सर। अपनी ज़बान है ना, जब भी आसान जिसकी जो मदर टंग है सर वो ऐसे ही आसान है, जर्मन मतलब मैं गाड़ी धो रहा हूँ, मैं गाड़ी धुलवा रहा हूँ। लेकिन सर फिर इंग्लिश बिल्कुल इस केस में आसान है, इंग्लिश में वो केसेस नहीं होते, इसमें जर्मन में होते हैं वो डाटे वकुजाटे, उस वजह से पूरा मतलब बिल्कुल गड़बड़ हो ऐसे ही। जाती है उसमें सेंटेंस बनाते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई होप कि लेसन तो क्लियर होगा आप लोगों को, और लेसन यस का सर। इस्तेमाल हाँ कहाँ वो कहाँ तो किया जाता है, और लेसन को कब पास्ट सर पार्टिसिपल ये में लेसन लेसन। बड़ा जरूरी है क्लियर करना, क्योंकि इसने आगे भी जाके जान नहीं छोड़नी है। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल।